Good morning, class. Today we are going to start our new chapter, that is common fractions. Fractions. What do you know about fractions? Before telling about the fraction, let us see some figures that I have drawn here to explain the concept of fractions. Okay. Children, see carefully what you are observing here in figure 1. One rectangular box is there, one rectangular figure is there. It is divided into 4 equal parts, and here there is one shaded part and 3 parts are unshaded. So, to represent this one part of this whole figure, which is divided into 4, we represent it as 1 by 4. The meaning of 1 by 4 here is there are total 4 parts of one complete object, and out of this one is a shaded part or filled part. Okay, so it is represented in the form of numerator 1 and denominator 4. Okay, so 4 represent the whole part, okay, this whole part, and 1 represent only shaded area or the region of this whole part. So it is one of the 4 parts. Okay, so it is 1 and this is 4. Similarly, in this type of figure, one circle is there. It is also divided into 4 parts, but there are 2 shaded regions, so it is represented as 2 by 4. The way it is written is known as fraction. Okay, again, when this rectangular figure is drawn, it is also divided into 8 equal parts, and from this, how many shaded regions are there? 1, 2, 3 and 4. So we will write 4 in the numerator, that are shaded portion, and there are total 8 parts of this rectangular, so it is represented here. So the meaning is that the denominator represents the whole figure or the object, and the numerator represents the part of it. Okay, so 4 parts of this 8, 2 parts of this 4, 1 part of this 4. Okay, so let's study the definition of fraction. See, fraction is a part of a whole, that is 3 out of 2, 9 out of 5 and 5 out of 11 are all fractions. In fractions, these 2 represent numerator and 3 represents denominator. Now let's study the type of fractions. So first one is like fraction. Like fractions are fractions having same denominators that are having same denominators. Numerator may vary, but the denominator are always same. So this type of fractions are known as like fraction. Next is unlike fraction. Unlike fractions are having different denominators. उसमें same denominators होंगे, और unlike है तो different denominator, different numerator. ठीक है, 2 by 7, 3 by 11, 4 by 9 and 2 by 7 are example of unlike fractions. Now let's see what is unit fraction. A fraction having numerator 1 is called unit fraction. ऐसे कोई भी फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर कोई भी हो चलेगा, उसको कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन. So 1 by 8, 1 by 7 and 1 by 12 are known as unit fractions. Okay, now moving towards next definition, equivalent fractions. Equivalent fractions are nothing but the fraction
which are represented in different forms but can be reduced to equal part. See, 1 by 2 is a fraction, and see 2 by 4 is also fraction. See, we can cut here it by 2, 2 ones are 2, 2 twos are 4. What we will obtain? 1 by 2 again. Here also 3 ones are 3, 3 twos are 6. So 1 by 2 we will get here also 4 upon 8. We will divide it by 4, 4 ones are 4, 4 twos are 8. So the fraction is reduced to 1 by 2. So the meaning of all this is 1 by 2. So that's why it is called equivalent fraction. Next, proper fraction. Proper fraction, a fraction whose numerator is less than its denominator. See, what is said, जो न्यूमरेटर होगा, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर होगा, वो नीचे वाले डिनोमिनेटर नंबर से हमेशा छोटा होगा. ऐसे नंबर जो न्यूमरेटर में हमेशा छोटे होंगे और डिनोमिनेटर में ज़्यादा होंगे, ऐसे फ्रैक्शंस को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर हमेशा छोटा एंड डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर. ओके, दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट improper fraction. What are improper fraction? A fraction whose numerator is greater than or equal to its denominator is called improper fraction. ऐसे फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है या तो डिनोमिनेटर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा. प्रॉपर में छोटा था, इम्प्रॉपर में बड़ा होगा. ठीक है, तो न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर. 9 और इक्वल है तो भी क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा. सी 45 इज ग्रेटर देन 23, सो इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ नेक्स्ट इज मिक्स्ड नंबर. सी, अभी तक हमने बस 3 बाय ऐसे फॉर्मेट में ही देखा था, लेकिन एक और फॉर्मेट होता है फ्रैक्शन का जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड नंबर. सो द फ्रैक्शंस लाइक दिस, इन द मिडल, 1 in the middle of 3 and 4, 2 in the middle of 1 and 3 आर कॉल्ड मिक्स्ड नंबर. इस तरह के नंबर्स को मिक्स्ड नंबर कहते हैं. ये कैसे होता है, ये कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हम अभी आगे देखेंगे. ठीक है, अभी हमने देखा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे फ्रैक्शंस जो न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, उसी को कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते थे? इसके पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था फर्स्ट में, उसमें हमने क्या किया था, बस ऐसे नंबर्स लिए थे जो छोटे थे. मतलब हमने क्या लिया था? प्रॉपर फ्रैक्शन ले लिया था. जो पहले स्लाइड का जो फिगर था उसमें देखो, जो 4 पार्ट थे उसमें का एक पार्ट जो था वो छोटा है. ऐसे ही दूसरा पार्ट जो 2/4 था, 2 छोटा था. 4/8 वाला जो था वो छोटा था. ठीक है, लेकिन अगर हमको रिप्रेजेंट करना है 7 को, 4 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए, ऐसा कोई फिगर होगा जिसमें हमको 7 रिप्रेजेंट करना होगा, तो हमको 2 बार लेना पड़ेगा. एक बार में तो होगा नहीं, 4 में से 4 हो गया, एक 4 हो गया पूरा पार्ट सर्कल का, तो उसमें से भी 4 हो गया. लेकिन हमको 7 लेना है, मतलब और 3 हमको एक्स्ट्रा लगेंगे. तो हम इसलिए एक दूसरा सर्कल लेंगे जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा. उसमें अगर हम 3 शेड कर देंगे तो 4 + 3 क्या हो जाएगा? 7. और डिनोमिनेटर जब फ्रैक्शन के सेम होते हैं तो हम डायरेक्ट एडिशन करते हैं, ये आपको पता होगा. तो क्या हो जाएगा? ये 4 + 3 अपॉन 4. ओके, सो 1 + 3 सी, नाउ सी, ये 4/4 क्या हुआ? 1 हुआ. ठीक है, इसको हम जब कट करेंगे 4 1 = 4, 4 1 = 4, तो ये हमको 1 मिला. ठीक है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे. ठीक है, 1 और ये वाला फिगर 3/4. तो हम देखो दोनों को अगर ऐड करते हैं 1 + 3/4, ऐसे फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके. पता है आप लोगों को इसको ऐसे ऐड करते हैं, 4 1 = 4 + 3, ऐसे 4 × 1 + this numerator. So 4 × 1 + 3, 7/4, like this, and we represent it like this. Okay, 4 × 1 + 3, 4 × 1 + 3, that is 7/4. इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे. सिमिलरली दूसरा एग्जांपल लेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 + 1 2,
2 plus 1/3, that is nothing but 2 plus 1/3 और 2 1/3. ओके. नेक्स्ट, फ्रैक्शन एज ए डिवीजन. हम जानते हैं 2/3, इसी का मतलब होता है कि जो 2 है वो डिवाइड बाय 3 होगा. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं डिवीजन के फॉर्म में, 2 डिवाइड बाय 3. और इसी तरह 8/3 को कैसे लिखेंगे हम, 8 डिवाइड बाय 3. सिमिलरली 7/4 को कैसे लिखेंगे, 7 डिवाइड बाय 4. एंड 5/2 को लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 2. ओके. यही होता है फ्रैक्शन को अगर हम डिवीजन में लिखते हैं तो इसका रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट क्या होगा, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो अभी था ना, न्यूमरेटर में जो नंबर ज़्यादा होते हैं डिनोमिनेटर से, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड नंबर में, मिक्स्ड नंबर जैसे जो बीच में मिडल में नंबर आया था, है ना, उस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे. तो देखिए कैसे लिखेंगे हम. ये जो नीचे है डिनोमिनेटर में, सपोज ये एक, इसको हमको कन्वर्ट करना है 8/3 को मिक्स नंबर में. तो 3 जो है वो क्या है, एक इज एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. सो फाइंड आउट हाउ मेनी 3s आर कंटेन्ड इन 8 पार्ट. कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 3 पार्ट में डिवाइड है. ठीक है. जब हमने एक सर्कल लिया था, जैसे उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, मान लो हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है. तो ऐसे कितने पार्ट, ऐसे 8 को लाने के लिए कितने पार्ट करने पड़ेंगे. फाइंड आउट हाउ मेनी 3s आर कंटेन्ड इन 8. 8 में कितने 3s रहेंगे, फिर 2 ही 3 रहेंगे ना, क्योंकि एक बार 3 डालेंगे और दूसरी बार 3 डालेंगे तो 6 हो जाएगा. तो 2 ही 3 रह सकेंगे, दूसरी बार बस 2 के ही लिए जगह बचेगी. ठीक है. तो इसको हम कहेंगे, ऐसे लिखेंगे. देखो पहली बार में हमने 3 लिया, फिर से 3 लिया, कितने हो गए 6. हाँ, तो 8 में तो केवल 6 ही पार्ट ऑक्यूपाई हो सकते हैं ना, 2 पार्ट नहीं होंगे, 2 वाले ऐसे ही रह जाएंगे. ठीक है. तो उसको हम ऐसे 8 को कैसे कर रहे थे, 3 प्लस 2 रिमेन रहेगा. तो इसी को हम अगर ऐड कर देंगे, दैट इज 3 प्लस 3, मतलब ये दोनों का क्या हो जाएगा, 2 पोर्शन हो जाएगा. और 2 वाला जो पार्ट है ऐसे रिमेन रहेगा. ठीक है. यहाँ देखो, फिगर में देखोगे तो जल्दी समझ में आएगा. इसमें देखा हमने 3 में से तीनों पार्ट कर दिया कलर, यहाँ पे भी तीनों में से तीनों कर दिया. तो हमको क्या मिला, 1 1 1 प्लस 1 2. और ये वाले में 2 ही पार्ट रहेंगे ना, हमको 3 लेना हो. ठीक है. इसमें से हमको 8 रिप्रेजेंट करना था, 1 2 3 1 2 3 6 और ये 2 8. ठीक है. तो यहाँ पे क्या रिमेन हुआ, 2/3. तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2/3 क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2/3 इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन, दैट इज 3 2s are 6, 6 प्लस 2 8, 8/3. ये होगा हमारा आंसर. और उससे भी शॉर्ट में अगर हम देखा जाए, उसको कैसे याद रखें कि कैसे हमको मिलेगा. हम बार बार फिगर तो नहीं बनाएंगे. तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे कोई फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उस फ्रैक्शन को डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे, क्योंकि इस फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है कि 15 को 7 से डिवाइड करना है. तो आप क्या करेंगे, 15 को 7 से डिवाइड कर दोगे. तो क्वेश्चन क्या मिलेगा, 2 टाइम्स में हमको 14 मिलेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा. ठीक है. तो देखो ये क्वेश्चन हो गया 2, रिमाइंडर 1 एंड डिवाइजर 7. तो मिक्स नंबर को हम हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बीच वाला नंबर होता है वो हमेशा क्वोशंट होता है, मतलब जो हमको क्वोशंट मिला है डिवाइड करने पे वो हमेशा बीच में रहेगा, मिडिल में. और जो हमको रिमाइंडर मिला है वो न्यूमरेटर में रहेगा. और जो डिवाइजर हमने 7 से डिवाइड किया था वो हमेशा नीचे आएगा. ठीक है. तो देखो हमको क्या मिला था, बीच में क्वेश्चन लिखना है. यहाँ ये क्वेश्चन क्या आया, 2. क्वेश्चन क्या मिला था, 2. फिर न्यूमरेटर में हमको क्या लिखना है, रिमाइंडर. रिमाइंडर क्या आया था, 1. और ऐसे ही हमको डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, डिवाइजर, दैट इज 7. सो यही फॉर्मेट आपको याद रखना है, बीच में क्वेश्चन, ऊपर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर. कोई भी नंबर को अगर कहा कन्वर्ट करने के लिए मिक्स नंबर में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, तो आप डिवाइड करके उसका क्वेश्चन देखिए, रिमाइंडर देखिए और डिवाइजर. क्वेश्चन हमेशा मिडिल में आएगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर में और डिवाइजर जो है वो डिनोमिनेटर में. तो यही हो गया उसका रिप्रेजेंटेशन. अब इसके आगे हम एक्सरसाइज 5.1 कर सकते हैं. ठीक है.
तो एक्सरसाइज 5.1 के कुछ एग्जाम्पल्स क्लास में करवाएंगे और बाकी आपको होमवर्क करने होंगे, ठीक है। थैंक यू।